International Yoga Day. What is yoga? Yoga is a practice that brings joy, health, and peace from within and deepens a sense of continuous connection between an individual's inner consciousness and the external world. যোগ শুধু শারীরিক চর্চা নয়, দেহ, আত্মা ও মস্তিষ্ক একত্রিত করার মাধ্যম। ভারতবর্ষের প্রায় 5000 বছরের সুপ্রাচীন এই যোগ অভ্যাস যারা সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে সুস্থ দেহ মনের মেলবন্ধন ঘটানোর অনন্য উপায়। তাই 2014 সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক ধারণার প্রস্তাব পেশ করেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যা গৃহীত হয় সেই বছরই এবং 21শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যোগা কোভিড মহামারীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবতার এক খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। The theme for today's 8th International Yoga Day, organized in India and across the globe, is Yoga for Humanity, which was announced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat. Now we would like to take the opportunity and welcome our guests who are present here. Mrs. Kajol Das. Kunal Vitro. অপর্ণা সেনগুপ্ত। রেখা তবি। राकेश जैन। रिंकू घटक। जया रॉय। मऊ दास। आयन्ना टोडी। योगा इंस्ट्रक्टर विदिशा रॉय। रिंकू गांगुली। दिलीप टोडी। Thank you for being with us here today. সকলের কাছে যোগার প্রাসঙ্গিকতা কি তা তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যারকে। স্যার প্লিজ। সকলকে সুপ্রভাত জানাই। আজকে 8ম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে উপস্থিত মাননীয় অতিথি অভ্যাগত যারা এসছেন তাদের স্বাগত জানাই কলেজের তরফ থেকে। আমরা একটু আগে শুনলাম যে যোগ এর সাথে ভারতবর্ষের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সাথে যোগ
এই ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু প্রাচীনকাল থেকে যোগ অনুশীলন করা হয়, অভ্যাস করা হয় এবং এর গুরুত্ব বিভিন্ন মনীষী, মহাপুরুষ, সাধক, মুনি, ঋষিরা বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যক্ত করেছেন। আজকে যেদিন থেকে আন্তর্জাতিক কথাটা যুক্ত হলো, তারও বহু আগে থেকেই যোগ কিন্তু আন্তর্জাতিক ছিল। আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই ব্রায়ান লারার নাম শুনেছ। একটা সময় এসেছিল ব্রায়ান লারার জীবনে, সব ক্রিকেটারের জীবনে আসে। তো সেই ব্ল্যাঙ্ক পিরিয়ডে ব্রায়ান লারা পারফর্ম করতে পারছিলেন না। অনেকদিন যাওয়ার পরে তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথমে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন সেটা ছিল মেডিটেশন আর যোগা। মেডিটেশন এবং যোগা ইউরোপিয়ান ক্লাবে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। পরশুদিনের টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রথম পাতায় দেখবেন লেখা আছে যে কোচ তাদের উদ্বুদ্ধ করছেন মেডিটেট করতে। তো কেউ আমাকে বলুক বা না বলুক, কেউ এই খ্যাতি দিক বা না দিক, যোগ কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র নানাভাবে বিরাজমান এবং বহু মানুষের বহু উপকার করছেন। অনেক মনীষী, অনেক রাজনীতিবিদ কোনো না কোনো রকমে যোগের অনুশীলন অভ্যাস করেন। তো যোগ কি এটা আমি সঠিক জানি না। যে সমস্ত ভদ্রজনেরা এসছেন তারা অনেক ভালো বলবেন। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে যোগ এর অনেকগুলো ধারা আছে। এটা শরীর দিয়ে শুরু হয়, মনের ভেতর প্রবেশ করে, আত্মাকে উন্নত হয়। শরীর দিয়ে শুরু হয়, এই যে বিভিন্ন জায়গায় ছবি আছে, শরীর দিয়ে শুরু হয়েছে। আমাদের মনে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ যৌবন, আমাদের চঞ্চল যে মন, সেই চঞ্চল মনকে আমাদের নিরোধ করে, সংযত করে, বাদ দেয়। বাদ এবং দৃঢ় আমাদের মন তখন অর্জুনের মতো শুধু পাখির চোখটা দেখবে, চারপাশের থেকে গুটিয়ে দিয়ে আমার যা আরাধ্য, আমার যে লক্ষ্য বস্তু, সেই দিকে সে নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করবে। এরপরে ধীরে ধীরে সেটা সোল, আত্মার উন্নতি হবে। তো আত্মার যেটাকে বলা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি, সোল, এর সাথে কিন্তু ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ আত্মিক উন্নতি হিন্দুরাও চায়, মুসলিম ভাই বোনেরাও চায়, খ্রিস্টানরাও চায়, বুদ্ধদেবের দর্শনও আছে, সর্বত্র আছে। Now we are requesting our respective members of Shohod Jog. Good morning everybody. सबसे पहले मैं विजय पाल मेमोरियल बीएड कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हम लोग को ये अवसर दिया कि हम लोग यहाँ पर एक मेडिटेशन का सेशन ले सकें और आप लोग को उसके बारे में बता सकें। और मैं सारे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू करता हूँ कि
कि आप लोग ने आज अपने वर्किंग शेड्यूल में से मतलब अगर एजुकेटिव शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पर प्रेजेंट है टू लर्न मेडिटेशन। आप लोग सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं? सर की बोलने की दरकार नहीं, मैं सर नहीं, आई एम जस्ट लाइक यू ऑल, नो नीड टू से सर। हम लोग चालू करते हैं इसमें सहयोगा मेडिटेशन। आप लोग के ये घर के बाहर में एक थर्माकोल के ऊपर में इंटरनेशनल सहयोगा डे लिखा हुआ है और एक चार्ट बना हुआ है ऐसा ही। किसने बनाया? मस्ट बी ए ग्रुप एफर्ट, बहुत सुंदर बना है। आपको मालूम है उसके बारे में? जिसने बनाया है, हाँ जिसने बनाया है, क्या आपको पता है उसके बारे में? बहुत सुंदर बना है। आपको जो चार्ट आपने बनाया उसके बारे में कुछ भी आपको आइडिया है? क्या चलिए आपको मालूम है, आई तो नो इसी के बारे में हम लोग काली ऐसा। आपको डेली लाइफ में मेडिटेशन के बारे में तो मालूम है कि मेडिटेशन बोल के कुछ होता है, ध्यान बोल के कुछ होता है। मेडिटेशन से फायदा क्या होता है? एनीबॉडी? ठीक है, कंसंट्रेशन पावर। और सिर्फ कंसंट्रेशन? चलो ठीक है, शांति आता है। और क्या बोलता है? वो तो कंसंट्रेशन एक ही बात है, उसको आपने हिंदी में बोल दिया। वही तो कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है, चलिए रिफ्रेश हो रहा है। चलिए और हाँ चलिए, बहुत सारा बीमारी ठीक होता है। और रिड्यूस एंगर और पॉजिटिव थिंकिंग। कैसे होता है ये? होता तो है, पर कैसे? यदि इस चीज को हम लोग सब, हाँ क्या बोले आप? हाँ एक्चुअली वी कैन कनेक्ट आवरसेल्फ, बट कैसे? कैसे होता है ये चीज? यदि इसको अपने डेफिनेशन फॉर्म में बोले, थ्रू मेडिटेशन, Vaya meditation, we learn how to suppress our anger, connect ourselves to the divine body, which help us to live a healthy life with a stress-free atmosphere and joyous being. जैसे कि प्रिंसिपल्स ने बताया, मेडिटेशन जो है वो एक कनेक्शन है और हम लोग प्राचीन काल से इसको करते आ रहे हैं और इसमें धर्म से रिलेटेड एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है, सब में अलग अलग नाम से बोला हुआ है, लेकिन मूल मंत्र एक ही है, एक ही चीज है बोला हुआ। हम लोग अभी डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। सहयोगा मेडिटेशन जो है वो हमारी जो गुरु माँ है श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने 5 मई 1970 में स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग कैसे अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकें और जो बेनिफिट्स आप लोग ने अभी कहा उसको हम लोग अचीव कर सकें थ्रू मेडिटेशन। इसके लिए कुछ भी हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। ग्रेजुअल प्रोसेस में डेली लाइफ में जैसे हम लोग अपने लाइफ जीते हैं उसी तरह से मेडिटेशन करते करते हम लोग अपने आप को सेटल करते हैं। सहज योगा का मतलब है स्वयं के साथ जन्म होया हुआ।
योग का मतलब है योर कनेक्शन विद द डिवाइन पावर। ये हमारा मानव यंत्र है जो आप देख रहे हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब 3 महीने 4 महीने का होता है, जब उसके बॉडी के पार्ट्स बनने लग जाते हैं, तब ये डिवाइन एनर्जी हमारे सर में से शरीर के अंदर प्रवेश करती है गर्भ में। और प्रवेश करने के बाद इसमें 3 चैनल्स का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लू से है जिसको हम लोग लेफ्ट चैनल बोलते हैं, जो येलो से है जिसको हम लोग राइट चैनल बोलते हैं, और जो बीच में है वाइट से जिसको हम लोग सेंटर चैनल बोलते हैं। इसी और 7 प्लेक्सेस जो कि डॉक्टर्स लोग संस्कृत में जिसको चक्रास बोलते हैं। जब ये 7 चक्र और 3 चैनल का निर्माण हो जाता है, तो जो रेसिडुअल एनर्जी हम लोग में जो बसती है वो नीचे त्रिकोणाकार अवस्था में जाके हम लोग के 3rd लास्ट बोन, जो जिसको हम लोग सेक्रम बोन बोलते हैं, वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है, जिसको रेसिडुअल एनर्जी भी बोला जाता है। अभी जो हमारा हम लोग के अंदर में जो चक्रास हैं, या जो साइंटिस्ट लोग या डॉक्टर लोग प्लेक्सिस भी बोलते हैं, हर प्लेक्सिस का अपना अलग अलग क्वालिटीज होता है, अपना अलग अलग काम होता है। जैसे सबसे पहले जो हम लोग के बॉडी में चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसका क्वालिटी होता है प्योरिटी एंड इनोसेंस। सेकेंड चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका क्वालिटी है क्रिएटिविटी। और इसका एक क्वालिटी और है जो हम लोग को मेमोरी को शार्प करते हैं। हम लोग जनरली जब पढ़ाई करते हैं या और भी बहुत सारे, जैसे कोई सिंगिंग करते हैं, कोई ड्राइंग करता है, तो हमारे अंदर में जब ये प्लेक्सिस जब डेवलप होता है थ्रू मेडिटेशन, तो हमारे अंदर की जो इनर क्वालिटीज हैं वो स्टार्ट कमिंग आउट एंड वी आर एबल टू मेक गुड ड्राइंग्स। बहुत अच्छी कविताएं बोलते हैं, या हम लोग के अंदर में उस जगह पे ग्रे सेल्स बनते हैं जो हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, जो ब्रेन को शार्प बनाते हैं। दोज ग्रे सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्वादिष्ठान चक्र। फिर हमारे 3rd है जिसको हम लोग नाभि चक्र बोलते हैं। फिर 4th है हार्ट चक्र। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, या बहुत सारे नॉर्मल में भी हम लोग देखते हैं, बहुत लोगों को स्टेज फ्राइट होता है कि वो कुछ बोलने से डरते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या हम लोग कहीं घर में भी अंधेरा है, बाहर में जाके किचन से पानी पीना है तो डर से नहीं जाएंगे, भूत है वहाँ पे, डर लगता है। तो वाई दिस हैपेंस? बिकॉज आवर हार्ट चक्र इज वीक। या हम लोग कोई मास पब्लिक के सामने कुछ बोलने के लिए कहें तो हिम्मत नहीं होती है, कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होती। लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से, मेडिटेशन से हम लोग ये चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो 5वां चक्र है वो है विशुद्धि चक्र, जिसमें हमारे अंदर में एक क्वालिटी आती है आपको कलेक्टिविटी में रहने की। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सेल्समैन। आज सेल्समैन की क्वालिटी क्या होती है कि सामने वाले को एक एक्सप्रेसिव तरीके से चीज़ों को समझाए ताकि वो उस प्रोडक्ट को ले सके। बट इफ द सेल्समैन इज नॉट एक्सप्रेसिव, वो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकता है। वो कन्विंसिंग पावर हमारी आती है ये विशुद्धि चक्र से। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग लोगों के साथ इंटरमिंगल करके काफ़ी फ्रेंडली तरीके से अच्छे से रहते हैं, वो क्वालिटीज आती हैं विशुद्धि चक्र से। उसके बाद 6 में है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में इसमें इसकी जो क्वालिटीज है दैट इज फॉरगिवनेस, क्षमा करना, जो आज के डेट में बहुत बड़ी कठिनाई है सबके लिए। किसी को कुछ बोल दिया तो उसको तकलीफ हो जाती है, फिर वो दिन रात खाली वही सोचता है और मन में बदले की भावना आती है, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूँ मेरा हम शामिल नहीं हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको खुद को ही तकलीफ हो रही है, सामने वाले को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, आप दिन रात अपने आप को परेशान करता है। और इसके अलावा है लास्ट में 7वां चक्र सहस्त्र, जो कि इन 7 चक्रों का इंटीग्रेशन है। अभी होता क्या है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो सेक्रम बोन है, जो जिसको संस्कृत में कुंडलिनी शक्ति भी बोली जाती है और रेसिडुअल एनर्जी भी बोलती है,
और वो एनर्जी हमारे शरीर में से अंदर से शरीर से वो निकलती है, निकल के हमारे चक्र को क्रॉस करते हुए हमारे सहस्त्रार से बाहर निकलती है। जब ये शक्ति बाहर निकलती है तब आपको सर के ऊपर और आपके हाथों में आपको एक डिवाइन कूल ब्रीज महसूस होती है। कहने का मतलब टू फील लाइक अ कूल एयर कमिंग आउट ऑफ योर सहस्त्रार, ऑफ योर लिम्बिक एरिया, ऑर्टिनल बोन एरिया। ये एक्चुअल में होता है। ये कोई आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग मन में हंस रहे होंगे कि आए हैं बिल्कुल बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। बट बहुतों को इंस्टेंटली महसूस हो जाता है, बहुतों को ग्रेजुअल प्रोसेस में आस्ते आस्ते टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन महसूसी आती है। वही सेम महसूसी आपको हाथों में भी हमारे 7 चक्र है, 5 अंगुली में और एक बीच में और एक इस जगह पे। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको वो महसूसी हाथ में भी आती है। इसमें और एक चीज है जो चैनल्स के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। हमारे बॉडी में जो 3 चैनल्स हैं, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और सेंट्रल चैनल। लेफ्ट चैनल जो है ये हमारे पास्ट को डिनोट करता है। हमें व्हाटएवर हैज हैपेंड विद अस, जो बीत चुका है, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन आवर लेफ्ट चैनल। जो राइट चैनल है वो हमारे फ्यूचर को डिनोट करता है। मीन्स व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू इज आर स्टोर्ड इन आवर राइट चैनल। एंड जो सेंट्रल चैनल है दैट इज आवर प्रेजेंट। जनरली देखिएगा कोई भी एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने आप को या तो बहुत बेसी पास्ट में जोड़ के रखता है या बहुत बेसी अपने आप को फ्यूचर में जोड़ के रखता है। मसलन के तौर पर कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई जैसे एग्जाम्पल में आप ही लोग स्टूडेंट लोग हैं, आज आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं सामने, तो आप पहले से ही काफ़ी प्लानिंग में चल रहे हैं। मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, मेरे को ये चीज़ पढ़ाई करना है। आप खूब बेसी एकदम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। उस समय होता क्या है, हम लोग राइट की एनर्जी बेसी यूज करते हैं एंड इट टेंड्स टू आवर बॉडी टेंड्स टू बिकम ओवर हीटेड, जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती रात को, टेंशन बढ़ जाता है, वैसे होता है। और एक चीज कैरेक्टरिस्टिक जो अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में होता है कि हम लोग अपने आप को पास्ट से जोड़ के रखते हैं, जो बीत चुका है उसके साथ में। गुड इसमें क्या होता है कि हम लोग जो पास्ट की एनर्जी है उसको ज़्यादा यूज करते हैं। उससे जो लोगों में डिप्रेशन की शिकायत होती है, दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द एनर्जी ऑफ लेफ्ट साइड। बहुत लोग जो सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कुछ भी क्या हो, रोने लग जाते हैं एकदम इमोशनल कैरेक्टर जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो इमोशनल कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट को डिनोट करता है। मतलब he or she uses more of his left side energy, बट ये राइट और लेफ्ट के अलावा भी एक पार्ट है प्रेजेंट, जिसमें थ्रू मेडिटेशन वी ग्रेजुअली ट्राई टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ इन द प्रेजेंट। होता क्या है कि हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप लोग बैठे हैं तो अभी भी कुछ ना कुछ, सब कोई कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। अब वो आप चीज़ ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। जो मैं अभी पास्ट और फ्यूचर के बारे में बोला, आप गौर कीजिएगा, या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं जो बीत चुका है, या आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो आपको मालूम नहीं है, प्रेजेंट में कोई नहीं है। तो पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में क्या होता है, हमारे अंदर एक फिजिकल या मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। और वो स्ट्रेस की वजह से हम लोग के अंदर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, नींद खत्म हो जाती है, या और भी बहुत सारे टेंशन्स डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिजीज वी सी इन पीपल। इट इज ऑल ड्यू टू स्ट्रेस एंड एक्सेसिव थिंकिंग ऑफ फ्यूचर। यदि हम लोग आज ढंग से मेडिटेशन करें तो ये भी क्योरेबल है, क्योर होती है। तो
इसको अभी अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूछ सकते हैं कोई, नो नीड टू हेजिटेट, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन प्लीज कम फॉरवर्ड। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर अगर 7 चक्रास में एक चक्रास डिसबैलेंस हो जाए तो हम फिर उसे बैलेंस कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अभी क्या है कि हम लोग जो हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, और मैं आई एम अनेबल टू फेस द क्राउड, या एग्जाम्स के टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम है कि एग्जाम के डर से मेरे को फीवर आ जाता है, या एग्जाम के टाइम में इतना नर्वस हो जाते हैं कि ठीक से एग्जाम जानते सब कुछ है, लिख नहीं पाते हैं ठीक से और नंबर गलत आ जाते हैं। इसका क्या कारण है कि हमारा हार्ट चक्र जो है वो वीक है। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है ऑन योर फिंगर टिप्स कि आपके कौन से चक्र में प्रॉब्लम है। ये ग्रेजुअल कोर्स में आपको जैसे जैसे हम लोग सेशंस करेंगे बाद में ये आप लोग को बता देंगे। जैसे मेरा हार्ट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका तरीका क्या है कि जब ड्यूरिंग मेडिटेशन वी स्टार्ट क्लीनिंग आवर हार्ट चक्र थ्रू डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन वाइब्रेशंस। आज मसलन के तौर पर एक गाछ है, जो मान लीजिए एक पौधा है, वो अब बैठे, आज एक पौधा है वो मुरझा गया, तो आप क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सनलाइट दिखाते हैं, फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो आस्ते आस्ते ठीक होने लग जाता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से जो है हार्ट पर, यहाँ पर हाथ रखते हैं एंड वी स्टार्ट मेडिटेटिंग। ग्रेजुअल प्रोसेस में आप फील करते हैं कि आपके अंदर एक चेंजेस आ रहा है, आपका अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद ये आँख बंद करके करना है, ठीक है। इस जगह पर रखेंगे, मैं जो अफर्मेशंस बोलूँगा वो अफर्मेशंस आपको मन में बोलाना है। पहले यहाँ रखेंगे, आप लोग करिए, एक बार सब लोग करिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना राइट हैंड गले में रखेंगे यहाँ पे, और सर को राइट की ओर घुमा लेंगे। हाँ, राइट की ओर, मिरर इमेज है, राइट की ओर, राइट की ओर। अपना आप अपना राइट साइड दाम दिखे, मैं मिरर इमेज में खड़ा हूँ, मेरे देखिए ऐसे। 4 नंबर में दादा आपका राइट हैंड करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे अपने राइट हैंड से करेंगे। और अपना राइट हैंड हम लोग नेक पे लेफ्ट साइड में रखेंगे। आपका लेफ्ट हैंड लैप पर ही रहेगा, गोदी में खुला हुआ रहेगा, गोद पे ऐसे खोल के रखना है। और राइट हैंड को अपने, मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग भी सब करें। यू विल एक्चुअली फील द वाइब्रेशंस। प्लीज बात मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, यू आर क्वाइट डिसिप्लिन, प्लीज बात मत करिए। जितना आप साइलेंस मेंटेन करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग ये राइट हैंड को गले में रखेंगे और सर को राइट साइड में घुमा देंगे ऐसे। फिर इसके बाद फिर अपना ये हाथ जो है सामने या सर पे सामने रखना है, और सर को थोड़ा सा सामने की ओर झुका लेना है। राइट। फिर उसके बाद ये हाथ को हम लोग सर के ऊपर रखेंगे। योर फिंगर शुड बी स्ट्रेच्ड, योर फिंगर शुड बी स्ट्रेच्ड एंड पाम का जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है, वो हम लोग सर में बीच में रखेंगे। बीच में रख के ना थोड़ी देर बीच में रखेंगे। जब मैं बोलूँगा हाथ नीचे रखने के लिए, तब फिर आप हाथ को लाभ पे रख लीजिएगा, गोद में रख लीजिएगा, ठीक है। हाथ नीचे रख लीजिए, दोनों हाथ गोद पर रखें ऐसे खुले। क्योंकि हम लोग आँख बंद करेंगे, चश्मा अपना खोल लीजिए, चश्मे की कोई दरकार नहीं है, अपने बाजू में रख लीजिए।
अपनी आंखें बंद कर लें। कौन क्या सोचता है मत मत लगाइए, सब मेडिटेशन करने ही आए हैं आप। प्लीज क्लोज योर आईज। प्लीज क्लोज योर आईज। अपने अटेंशन को आप सांस पे लेके जाइए। सर का एकदम ऊपरी हिस्सा जहां आपने लास्ट में हाथ रखा था, नहीं हाथ नहीं रखना है, अपने मन को, अपने अटेंशन को। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर के गेट को देखिए आपका टेंशन फट से वहां चला जाता है। आप यहाँ कॉलेज में बैठे हैं लेकिन आप अपने घर के गेट को देख रहे हैं तो आपका अटेंशन वहाँ चला गया। उसी तरह से आपके अटेंशन को आप सर के ऊपर लेके जाइए। हम अपने राइट हैंड को हार्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्रिया शुरू कर रहे हैं हम लोग। अपने राइट हैंड को हार्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। मन में एक प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, ओ डिवाइन गॉडेस, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। कृपया मेरा समर्पण स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। ओ सुप्रीम मदर, ओ सुप्रीम गॉडेस, आई एम अ होली स्पिरिट। अपने राइट हैंड को गले पर रखेंगे और सर को अपने राइट तरफ घुमा लें। हे परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। आई एम नॉट गिल्टी। आई एम नॉट गिल्टी। हे परमात्मा, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अभी हम अपना राइट हैंड सामने सर पे रखेंगे, जहां हम बिंदी लगाते हैं, फोरहेड पर रखेंगे। सर को थोड़ा सा सामने की ओर झुका दें।
आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा कर दिया। आई फॉरगिव एवरीबॉडी। आई फॉरगिव एवरीबॉडी। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए, मैंने सबको क्षमा कर दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने दाहिने हाथ को सर के ऊपर लेके जाएंगे। स्ट्रेच योर फिंगर्स। उंगलियों को सीधी रखें। हथेली से सर को टच करें। प्रे करें। ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी माय सेल्फ रियलाइजेशन। हे परमात्मा, कृपा मुझे मेरा आत्मा साक्षात्कार प्रदान कीजिए। O Divine Mother, O Divine Goddess, please give me my self-realization. हाथ को नीचे रखें, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। जिस जगह पे आपने अभी अपना हाथ रखा था, थोड़ी देर चुपचाप अपने अटेंशन को वहाँ रखिए और महसूस करिए आपको क्या फीलिंग हो रही है। आंखें बंद रखेंगे। हम अपना राइट हैंड सर के ऊपर लेके जाएंगे। टच नहीं करना है, सर से थोड़ा सा ऊपर रखिए। महसूस कीजिए हाथों में कुछ आपको फीलिंग है क्या। हाथ को थोड़ा सा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। एक सर से सर के ऊपर आपको कुछ बहता हुआ निकलता हुआ सर
फीलिंग हो रहा है क्या? आंखें बंद रखें, हाथ को थोड़ा सा आगे पीछे या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अपना हाथ नीचे रखें, लेफ्ट हैंड से चेक करें, अपने लेफ्ट हैंड को वैसे सर के ऊपर लेके जाए। अपना हाथ नीचे रख लें, फिर से राइट हैंड से अपना चेक करें। हाथ को नीचे रख लीजिए, दोनों हाथों को हार्ट लेवल पे ले आएंगे, हार्ट के सामने इस तरह से। एक बार देखें, ऐसे इस तरह से रखिए। आंखें बंद करें और अपने अटेंशन को हाथ पे रखें, हाथों में महसूस करें कुछ फीलिंग है क्या? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे रख लीजिए। किसी को कुछ महसूस हुआ हो, कुछ हाथ में ठंडापन लगा हो या गर्म लगा हो? जब आप हाथ ऐसे किए थे तो हाथ में कुछ महसूस हुआ? कितने लोगों को गर्म लगा? बोलिए मत, खाली हाथ उठाइए। कितने लोगों को ठंडा लगा? कितने लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। आप एक चीज मेरे को बताइए, आप जो आधे घंटे पहले यहाँ आए थे, नीचे बैठने में सुविधा है, लोगों को दिक्कत, हैबिट नहीं है कि नीचे बैठने की दिक्कत हो गया, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उपाय नहीं है। आप लोग जो आधे घंटे से यहाँ पे हैं, सेशन 1 मिनट, मेरे को 2 मिनट और दे दीजिए प्लीज, 2 मिनट और दे दीजिए। आधे घंटे से जो आप लोग यहाँ पर है, कुछ मन में आपको फीलिंग है कि आपके मतलब एक्टिविटीज बॉडी के अंदर की मन शांत हुआ हो, या जो पहले चंचलाहट थी, जो इतना एग्रेशनपन था वो कम हुआ है, थॉट्स कुछ कम हुए हैं, ऐसा कुछ किसी को महसूस हो रहा है? ठीक है, ये सब चीज जो हम लोग अभी क्रिया की है, कि आपको जो ये ठंडा या गर्म जो महसूस हुआ, जनरली क्या होता है जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आस्ते आस्ते आपको फीलिंग जो है वो ठंडी आने लग जाती है। ठंडी के मतलब ऐसे नहीं कि बर्फ जैसे आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं या सर पूरा बर्फ जैसे ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आप घर पे एसी खोल के खड़े हैं, या सॉरी रेफ्रिजरेटर खोल के खड़े हैं, फ्रिज खोल के, तो कैसा अनुभव होता है कि ठंडा ठंडा लगता है। तो वैसा एक हल्का फीलिंग आता है हाथ पे और सर पे। क्यों आता है ये? कि जब हम लोग अभी जो ये क्रिया किए, ये क्रिया करने से हमारे अंदर में जो हमारी सेक्रम बोन है या जो कुंडलिनी शक्ति है वो राइज होती है, जागृत होती है। जागृत होके वो सेंट्रल चैनल से हमारे जो सहस्त्रार है वहाँ से निकलती है, एंड इट्स गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। टेक फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में पूरे एडमिट बॉडी में पूरे बल्ब लगा दिए हैं, फैन लगा दिया, एसी लगा दिया है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं दिया है, तो वो वर्क करेगा? वर्क नहीं करेगा। द मोमेंट इट्स गेट प्लग्ड विद द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इट स्टार्ट फंक्शनिंग। वही सेम चीज हमारे साथ में है, हमारी बॉडी में सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, बट वी आर नॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी। द मोमेंट वी गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी थ्रू मेडिटेशन, we start feeling the cool breeze in our hand, in our sahasrara.
इसमें करने का विशेष कुछ भी नहीं है। सुबह शाम आपको 5 से 10 मिनट ज़मीन पे बैठ के आपको दोनों हाथ गोद पे रख के इस तरह से आपको सर के ऊपर में अटेंशन रखना है और सुबह शाम मेडिटेशन करना है। प्रोसेस बहुत सारे हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस में अपने आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे वैसे इसको और हम लोग बताएंगे। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि योगा या अध्यात्म कोई कोर्स नहीं है, आप 15 दिन कर लिए और उसके बाद आपका कोर्स खत्म हो गया, वो चीज़ नहीं है। ये एक मेडिटेशन इज ऑलवेज अ लिविंग प्रोसेस विच यू हैव टू डू डेली। जैसे आज हम लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए हम लोग एक हेल्दी डाइट की दरकार है, हेल्दी स्लीप की दरकार है, हेल्दी लिविंग की दरकार है, उसी तरह से हम लोग को डेली मेडिटेशन की दरकार है, क्योंकि ये एक लिविंग प्रोसेस है। उससे क्या होता है, हमारे चक्रास जो है वो ग्रेजुअली आस्ते 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 नरिश होते हैं, खुलते हैं। उससे जो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, शरीर में जो स्ट्रेस है, आपको जो तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे ठीक होती हैं और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यू आर हेल्दी। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। और ये कोई पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। हर धर्म में इसके बारे में बोला गया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। अलग अलग नाम से अलग अलग धर्म में इसके बारे में बोला गया है कि यू शुड ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी। राइट सर, इसको कुछ पूछना है? हम অনেকের গরম হাওয়া মানে অনুভব হলো, অনেকের ঠান্ডা হাওয়া, আর অনেকের অনুভবই হলো না। অনুভবগুলো কীভাবে হচ্ছে জানতে আমি আপনাকে ধরুন অনেক দিন ধরে একটা পাইপে कचरा भर्ती আছে, ठीक है। अभी मैं इधर से टैप खोल रहा हूँ तो या तो कचरे के साथ वो पानी निकलेगा या तो पानी नहीं निकलेगा। जिनको फीलिंग नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपको अनुभव नहीं हुआ है। एक्चुअली अनुभव आपको हुआ है, लेकिन वो आप फील नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। उसका कारण क्या है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की अपनी एक लाइफस्टाइल है। किसी में तकलीफ ज़्यादा है, किसी में तकलीफ कम है। कोई ज़्यादा इम्बैलेंस है, कोई कम इम्बैलेंस है, वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। गर्म जो महसूस हुआ उसका कारण क्या है? आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में फ्रिक्शन। ये हाथ भी हम लोग रब करेंगे तो हाथ गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? एक फ्रिक्शन एनर्जी की वजह से। तो गर्म होने का कारण ये है, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो हमारे चक्रास या हमारे चैनल्स जो हैं वो जब खुलते हैं विद द प्रेशर ऑफ डिवाइन एनर्जी, वो उसके फ्रिक्शन के वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर में। तो वो पहले वो हीट बाहर निकलती है, तब फिर जब वो हीट आस्ते आस्ते निकलते निकलते कम हो जाती है, तब फिर हम लोगों को हल्का हल्का एक कूल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें किसी को गर्म आया, किसी को ठंडा आया, इससे कोई तकलीफ नहीं है। मूल चीज़ ये है कि यू शुड फील द फीलिंग, चीज़ वो है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? देखिए, यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, इवन एडमिट बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसमें कंडीशनिंग कुछ भी नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल तरीका है। आप 2 महीने सिंसियरली 2 महीने आप इसको घर पे मेडिटेशन करें। नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई चार्जेस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग आपके कॉलेज में आए हैं तो फीस नहीं ले रहे हैं, आप और कहीं जाएंगे तो फीस लगेगा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर। एक बार कुछ समय अपने लिए दीजिए, 1 महीना 2 महीना करके देखिए, आपको कुछ फर्क समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिएगा, लेकिन
जब समझ में आने लगेगा आपको तो आप अपने खुद भी उसको रियलाइज करेंगे कि क्या है। सर कभी कभी ऐसे होता है, मन में टेंशन ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से क्या होता है, मन में एक्साइटमेंट भी आता है, कभी कभी एंगर आता है। तो वही टाइम में हमारा जो अदर माइंड है, दूसरा मन, तो अदर माइंड बोलता है कि लो ऐसा मत करो, ये काम करना ठीक नहीं, ये मत फेंको, ये ठीक नहीं है, उसको मत मारो, ऐसा ठीक नहीं है, तुम अभी बैठो। तो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अदर माइंड देयर इज a conflict, there is a tension between the first mind and the second mind. तो ये होता है, हम देखा है मेरे एक्सपीरियंस से, ये होता है रियलाइजेशन से, नहीं ये करना अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा काम है। तो धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो आप घूमने फिरने बाहर जाने के बाद वन सम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिटेशन प्रोसेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन? So self-realization is the process through which our humility is awakened. जो डिवाइन एनर्जी, जो रेसिडुअल एनर्जी हमारे अंदर में है, वो एनर्जी जब हमारे अंदर में जागरूक होती है, the moment we get connected to the divine power, we understand the things what is good, what is bad. Like for example, I am a very egoistic person. Take for example, I am a very egoistic person. मेरे को नहीं समझ में आता है कि आपको सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं गया सबके सामने दादा को डांट दिया, पीट दिया, एंड आई थिंक दैट इज राइट बिकॉज माय ईगो इज नॉट अलाउइंग मी टू एक्सेप्ट इट इज रॉन्ग। द मोमेंट आई रियलाइज व्हेन आई डू मेडिटेशन, आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड, कि क्या सही है क्या गलत है। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, या किसी को भी पब्लिकली या ऐसे नॉर्मल में भी मैं क्यों डांटूं, क्या बोलूं, व्हाई आई हैव द राइट। मतलब कहने का मतलब कि वो एक खुद सेल्फ रियलाइजेशन पावर हमारे अंदर डेवलप होने लग जाता है। आज हम लोग खुद भी कुछ गलती करते हैं तो वो हम लोग महसूस करते हैं कि ये काम मैंने गलत किया था, जो इन जनरल बातों को समझ में नहीं आता है। तो इट हैपन्स ओनली इन मेडिटेशन, इट्स थ्रू मेडिटेशन। I mean to say that when we start meditating, when we start getting connected to the divine power, we gradually able to realize and understand. आएगा सर, वो तो आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। देखिए हर आदमी का नेचर तो सेम नहीं होता है ना। आज मेडिटेशन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग जिंदा नहीं है, वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन तो लाइफ हम लोग उसी को नॉर्मल समझते हैं। But the moment we start meditating, we understand that something else is there apart from this which we are accepting as a normal life. तो उसमें भी भाई आज नॉर्मल में भी आज आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट तो सेम नहीं है। कोई बहुत ब्रिलियंट है, कोई मीडियोकर है, कोई एवरेज है। तो सबकी अपना परसेप्शन है, अपना पढ़ने का तरीका है। हाँ, Thank you everybody. শুরু করছি দাঁড়িয়ে, সবাই একটু দাঁড়িয়ে হলে ভালো হয়। ফার্স্ট যে আসনটা করবো সেটার নাম বৃক্ষাসন। আগে করে নিই, তারপর এটা কি উপকারিতা সেটা বলছি। আচ্ছা প্রথমে তোমাদের রাইট লেগটা আস্তে করে ওপেন করো। কথা বলছো কেন আবার? যে ধীরে ধীরে দুটো হাতকে ওপেন করো। এন্ড হ্যান্ড জয়েন্ট, এন্ড হ্যান্ড জয়েন্ট, হ্যান্ড স্ট্রেট, হ্যান্ড স্ট্রেট।
Slowly down. Slowly hands down and legs down. इसका ऑपोजिट लेग करना है आप. लेफ्ट लेग अप करो धीरे धीरे करके. उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करो धीरे धीरे करके. Down. Hands down first. Leg down. Next. সবাই হচ্ছে নিজেদের ডান দিকে ঘুরে যাও. আচ্ছা ডান দিকে ঘুরো. যখন চেয়ারে বসি না আমরা সেরকম জাস্ট চেয়ারে বসে. ওকে. আপ. হ্যান্ডস ডাউন. উল্টা ওকে. Down and hold. Up again. Ulta side. আমি করার পরে করবে. Up, hands down. চলো slowly hands up. Okay, slowly down. Down, hold, up, उल्टा होकर ऊपर. चलो हाथ ऊपर करो धीरे करके. Down, hold, up, and next. Bosun, sit down. এরপর নেক্সট পদ্মাসন, যে প্রসেস ছিল পদ্মাসনের. चलो चेंज. स्लोली बाहर. चलो पैर सामने करो. उल्टा पैर करके करो. जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे होगा. नीचे वाला पैर ऊपर होगा. चलो. Don't talk. Don't talk. Body straight. चलो चेंज. नेक्स्ट वज्रासन. नेक्स्ट वज्रासन. वज्रासन. सामने दिए करो. এদিকে फेस करो. मैम पूछो तो तुम से एदिके फेस करो. दोनों पैर सामने रखना है पहले. याद नहीं है ना? वेरी गुड. जयश्री मैम to help करो. Body straight, hands straight. चलो चेंज. नेक्स्ट. अच्छा ऑर्थो पूर्वासन. मैम को देख लो है. मैम को देख लो. हाथ पकड़ो. एक साथ जॉइंट करो दोनों हाथ को. स्लोली डाउन. स्लोली एंड होल्ड. हाथ को सीधा रखना है. हैंड स्ट्रेट. ऐसे करो. तो वहां से बात नहीं करना है. स्लोली आप, स्लोली आप, स्लोली हाथ एक साथ ऊपर करके. फिर साइड से हैंड्स डाउन.
दोनों हाथ डाउन करो और पैर सामने करो।